The rest of the things are also looking good as well. Let's quickly set up the stream deck as well. Let's maybe add the PG one as well. So duplicate, copy this. I'm gonna paste this as well. And let's see. This one has to change with PG. All right, let's see if I can switch them. So this, cool. Hello everyone. And let's also make sure that we are live on all the platforms. There we go. Yeah, I think we should be good. So hello everyone, and welcome to the stream. In this one, we are going to look into some of the things with Angular Cookbook, but I'm also going to be answering any questions that you might have. So it's going to be a live coding session with some Angular recipes. We're going to look into some Angular material stuff. And then we'll quickly move to the questions as well. Let's make sure everything works here. Cool. And there we go. Awesome. So let me know in the chat, how are you doing today? How's your weekend going so far? Let's also make sure we are able to see the messages as well. Ali wa alaikum assalam wa rahmatullah. How are you doing, Ali? Good? Oh, okay. Now I know why. Appearance. And let's also make sure that we are a bit more on the scale. I think this is a bit better. Compact mode. I think let's go with this one. And to block list. Yeah, we can leave this as it is for now. Hey Agu, how are you? I'm learning Vue now, but your tutorial was so useful. What tutorials are you talking about? I don't have any tutorials on Vue.js though. And since you have messaged, that's a really good sign that the stream is working well on Twitch, and that's after a while. I've had so many issues with Twitch not streaming anything or just being blank. How is everyone today? What cool things are you working on? Oh, about HTML CSS. That's super cool. Are you talking about the web development bootcamp, something that we did? I think it was this one, the bootcamp. By the way, did you folks notice the Vue transition API? So Chrome announced this really cool thing called Vue transitions API. And it has been there for 2021, but this is now being adopted to a lot of other frameworks as well. So have a look at this one. So you can do some really cool stuff with this Vue transition API, like going from one page to another. It's going into two different complete pages, but you can see the transition itself is really smooth. So it sort of links those two pages together. And this is not a single page application. This is a multi-page application. So there are two different HTML pages for this one. And still, it is quite possible to have this hero image transition or sort of linking them together. So it's really interesting. And a lot of frameworks are now starting to adopt this. And if you follow Adi Osmani from the Google team or the Chrome team at Google, you're gonna see him talking about those quite a lot. So it's an interesting one. And I was experimenting this with the code with Ahsan.dev site, and you will notice the same thing here as well. So for example, if I click here, you see that this one actually starts to do the same thing. Let's have a look here as well. There used to be also something like, give me 1 second. I'm gonna actually move this to a bit top. Yes, let's do it this way, so it's not taking up the entire screen. Oops,
should be like this. Go back. And let me also see. Asan bhai, I'm from India. यहाँ पर front end jobs बिल्कुल नहीं है अब. Interesting. India is quite big, and I think there are still front end jobs. Where are you searching for the jobs? Are you searching on LinkedIn or are you searching on some other platforms? कहाँ पे देख रहे हो jobs? So what I was going to look into was style, computed accessibility. Not really. Where did you have the animations? Layout, event listeners. No. Don't breakpoints. Wait a second. Let's have a look at Chrome, DevTools, animations. And that is from more tools and animations. Got you. So in here, I should be able to do it from here. Oh no, wait a second. Where do I enable this from? Oh, from there. Okay. So then here, there should be one right here. So here, more tools, animations. There we go. Now I can put this back again. It's a bit annoying, but we can work with this. So animations, look at this one. So this is really interesting. Now, if I switch the animation to, I don't know, 25%, look at what would happen. So if I go to my courses and I go to 25%, and then I go here, you see how slow this was. Let's do it with 10%. So in here, now look at this. So that is the view transition API that is super cool to work with. And you can see one thing going to the second page, but with completely different animations. So, or with an animation from one thing to another. And this goes from here as well. So if I click this, you see the video element itself sort of animates it. So that's super cool. And I think I implemented the same for the blog post as well. For example, if I click Angular signals, notice that. Ooh, fancy. So the code for this one is not really different or not really difficult, but it still requires some understanding of the animations or the view transition API in general. So go through this tutorial and you'll find some cool stuff. Let me share that here. मेरे पास अच्छे इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, मैंने सब यूट्यूब और यूडेमी से सीखा है. So Adil, it doesn't matter if you don't have degree, then you should have really good skills, because in the community आप देखोगे कि there are different jobs, और jobs में obviously preference या तो उसको दी जाएगी a person who has degree, क्योंकि that shows कि उसका education level ज़्यादा है. लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन लेवल ज़्यादा नहीं है तो आप फिर किस चीज़ से उसको रिप्लेस कर रहे हो, तो उस पर यू शुड हैव रियली गुड स्किल सेट. इफ़ यू डोंट हैव डिग्री, देन यू शुड हैव अ रियली गुड स्किल सेट. तो आप स्किल सेट पे काम करो, ट्राई क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, ट्राई बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो, एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स विद दैट पोर्टफोलियो. तो आपके पास वो पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें आप अपने स्किल्स को रिफ्लेक्ट कर सको. So I hope that makes sense. So thank you, Agu, for sharing about the tutorials. I appreciate it. Let's also bring this down a bit. Also bring this down a bit here as well. And let's move it right here. Cool. So I think we should be good now. So this is what I've been working on today. I need to still finish the recipe. What I'm working with is the list box. मैं portfolio में क्या projects add करूँ भाई? Go and search for JavaScript, beginners, projects, GitHub. जो projects थोड़े से advanced हो. I would say first start with the beginner one, जैसे 2D canvas game, analog clock. यहाँ से start करो and then make it more complex. For example, एक analog clock बन जाती है, तो then you start creating more of those. तो आप एक एनालॉग क्लॉक बना रहे हो तो उसके बाद फिर वर्ल्ड क्लॉक बनाओ कि एक ही पेज के अंदर मुझे मल्टीपल जगहों की या मल्टीपल सिटीज़ की क्लॉक्स नज़र आ रही हैं. Then also go for creating more complex stuff. For example, allow the user to input the location, for example, and then create a clock based on that location. So make it start small
and then go to the complex projects. So it's not really wise to start with the complex things, because then you will just be waiting or thinking about the more complex stuff and never start. So I hope that makes sense. Can you please make a tutorial on how to write tests for Angular application? I think I have a video already, Unknown 7. If you speak Urdu or if you understand Urdu, then you can go to here and you should be able to find unit testing with Angular, Urdu and Hindi. So this is the video I have already made. So you should be able to look into this one. So I hope this one helps. Okay, cool. So this is the one that I've been working on, and I'm working with using the Angular CDK list box, but then also using the regular one. So this is a regular one. This one, so I have two of those. This one is a regular one. This one is a CDK one. So I want to be able to work with Angular list CDK, because the benefit of this one is if I select this, I can navigate just like this from my keyboard, both from the up and down keys. With this one, I can't really do that because it's not a list box and it's just some divs and whatnot. So Angular CDK has something really cool with this. So I'm gonna actually show you. So the list box that Angular CDK has this feature. So I can move from from top to bottom, select a bunch of stuff via space or enter, and I can also have a horizontal list as well, like this one. I can move it like this. So this is similar to what I've created in my Angular recipe. And then you have multiple selections. I could use this as well, basic list box, and then list box with reactive forms as well. So I think this is essentially something that I'm working with. List box with value binding. Ooh. Reset. Okay, cool. Makes sense. So unknown 7, I hope that helps. So I'm working with this now. So we'll look into the code and also change a bunch of things as well. Okay. So let's have a look. So this is the one that I had before. I'm thinking if I should, because of the readability, should I use an array for all these options, or should I go and just create? I think for the sake of readability, I will not go and create an array. So this is better for the readability for the user. I think that makes much more sense than just over engineering the solution at the moment. Hmm. Anyways, so if I select this, it works. So if I go ahead and comment the other one, this should be the case. There we go. And now I should be able to select something, click add to cart, and that's pretty much it. Should we add anything, any notification or not? I don't think so. Or maybe we could, but we can avoid using a snack bar, or we could use a snack bar. Maybe not. I could use a portal to create a snack bar, but component portal, template portal, random portal. But then that makes it much more complicated, and I don't want to create a lot of complexity. Anyways, so we can select the selected color and then do all of that. Super cool. So then the only thing would be that after the field set, then I can use it. But then the question would be, should I create a component for this, or should I? Yeah, let's not make it too complex at the moment. So here we are going to say, let's put a color options. Color options. And here we can also say colors options end, for example.
So we do have both of them at the moment. So let's first, because this is the final implementation, so if I have this now, then I should be able to just copy paste it. So let's remove, do I need the block here? I don't think so. I can just use this and it should be okay as well. Yeah, looks the same. Cool. So now that I have this, let's remove this. No, let's remove this, put it here, and let's remove the old code from here. Okay. What did I do? One more div. Okay, so now I have this. Okay, only one. If I click this, cool. एहसन भाई, जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ डीएसए पूछते हैं आपसे? कभी डीएसए के क्वेश्चंस पूछे हैं? डिफरेंट कंपनीज़ ने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हैं. कुछ कंपनीज़ ने डीएसए पूछा है, कुछ कंपनीज़ ने नहीं पूछा है. मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के अंदर डीएसए नहीं होता, बट कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स वगैरह में अगर आप काम करो किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर, तो उसमें अक्सर डीएसए पूछा जाता है. तो इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. तो अभी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ तो सिचुएशन ही डिफरेंट है, तो ये वहाँ पे अप्लाई होता नहीं है, क्योंकि अभी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो बेसिकली एज इंस्ट्रक्टर मैं काम कर रहा हूँ. तो वहाँ मुझसे कोई पूछता नहीं है, या वहाँ मुझसे कोई ये नहीं पूछता कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं नहीं आते. वहाँ पे मुझसे लोग डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं रादर. तो आई होप दैट मेक्स सेंस. उप्स. ठीक है जी, तो ये हो गया. नाउ आई सी दिस CSS एग्जाम्पल दिस बॉक्स कंटेनर, ये सब हटा देते हैं. तो जस्ट मेक इट फाइनल और फिर इसको पुश करते हैं. नवीद वसीम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. आपकी क्या हाल है? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. अच्छा जी, और इसको हमने ऐड किया है एंड वी आल्सो एडेड कंपोनेंट्स. इसमें हमने क्या ऐड किया था? वैल्यू चेंज, इसको ऐसे ही रहने देते हैं. कलर चेंज ऐसे ही रहने देते हैं. और हम फॉर्म सबमिट पे वी कैन जस्ट अलर्ट, और इसको हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर देते हैं. जेसन स्ट्रिंगिफाई वैल्यू, ठीक है. अच्छा, नाउ आई कैन क्लिक इट. मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा. नाउ आई कैन क्लिक इट, तो वैल्यू कलर ब्लू. कूल. व्हाई डज इट से array blue though? Interesting. आप जीडी कैसे बने, कभी जर्नी शेयर कीजिएगा. आई थिंक यहाँ पे आप मेरे ख्याल से जितनी चीज़ें बोलोगे उसकी कोई ना कोई वीडियो मौजूद होगी. मी जी डी 2019 2022, इसमें से लेटेस्ट आई थिंक है ये वाली. तो इसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ. लेकिन मैं अगर आपको शॉर्ट में बता दूँ तो इट टुक मी सम टाइम, सम एफर्ट्स एज वेल, जिसमें बहुत सारा इम्पैक्ट क्रिएट किया गया. डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में टॉक्स दी गई, डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे गए, डिफरेंट जो है वो लाइब्रेरीज क्रिएट की गई. बहुत सारी लाइब्रेरीज पे कंट्रीब्यूट किया, एंगुलर पे कंट्रीब्यूट किया. तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो बहुत अच्छे नंबर्स मेरे पास आखिर में थे, जिसको मैं शो कर सकता था कि अच्छा मैं एक्सपर्ट हूँ एंगुलर के अंदर ऑलरेडी, और मैं जो हूँ वो ये लाइब्रेरीज क्रिएट कर चुका हूँ, यहाँ कंट्रीब्यूट कर चुका हूँ, इतने सारी कॉन्फ्रेंसेस में टॉक्स दे चुका हूँ, वर्कशॉप्स करा चुका हूँ. ये जीडी बनने से पहले की बात बता रहा हूँ. तो जब ये नंबर्स लेके गए गूगल के पास, तो गूगल ने फिर उसको इवैल्यूएट किया एंड देन दे वर लाइक ओके यस यू वी कैन रिकॉग्नाइज यू एज अ जीडी. तो ये सिंपल सी जर्नी है, लेकिन मैंने आपको जो वीडियो शेयर की है उसमें आई थिंक शायद थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इससे. तो आई होप दैट विल हेल्प इंशाल्लाह. अच्छा जी, स्टाइल्स के अंदर हमने रूट पे हम ले गए थे अपने वेरिएबल्स, बिल्कुल ठीक काम किया था. फिर फ्लेक्स कैप पे ले गए थे. प्रोडक्ट कार्ड का कलर चेंज होता है तो फिर हम ये सारी चीज़ें सेट कर देते हैं. गुड हो गया. उसके बाद अच्छा, इसमें मैंने कुछ साइंसेस लगाई नहीं है जो कि एंगुलर के लिहाज से आई डोंट नो. आई मीन इफ़ समवन लुक्स इनटू इट दे विल बी लाइक ये क्या किया हुआ है. बट फॉर द सेक ऑफ द एप्लीकेशन इटसेल्फ आई डोंट सी दैट एज अ प्रॉब्लम टू बी ऑनेस्ट. इसको दूसरे तरीके से किया जा सकता था.
बट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर हम उसका करें तो इट डजेंट रियली मैटर, because reader will most likely not be looking at that particular code. लेकिन अगर वो कर भी लेते हैं तो आई थिंक फॉर द सेक ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इट्स ओके. तो एक और चीज़ जो आप थोड़ा सा जब सीनियर हो जाते हो तो आप ये रियलाइज़ करते हो कि कभी कभार मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ओवर इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए कोड के बारे में. तो कुछ केसेस जो है उसमें आपको लगता है कि हाँ यार इसमें तो कोड इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज वाइज टू इम्प्रूव द कोड. ठीक है. ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू हैव, और मेरे पास I have limited time because I have more things to do as well. तो अब यहाँ पे करते हैं npm run copy 09 को हम ले जाएंगे ngcd के what was the name of the recipe list box. तो इसको ज़रा कॉपी कर लेते हैं. गुड हो गया. git add final, final को ऐड कर लेते हैं. और अब जो ये रह गया है ना, इसमें ज़रा देखते हैं इसमें हमें चेंजेस क्या क्या करना है. तो प्रोडक्ट कार्ड है, ऐप कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा. प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट के अंदर कुछ चेंजेस होंगे, वो अभी हम देख लेते हैं. और सी एस एस के अंदर सिर्फ एक चीज़ ये चेंज हो जाएगी, बाकी सब तो आई थिंक इज़ ओके. ये भी ऐसा ही रहेगा, इसको ऐड कर देते हैं. चलें अब ज़रा इसको देख लेते हैं. तो एहसन भाई, एक आखिरी सवाल. एक प्रॉपर रीसेलिंग वेबसाइट जिस पे लोग सेकंड एंड प्रोडक्ट बाय सेल कर सकते हैं, उसके लिए रिएक्ट और नोड जेएस अच्छी है, और इसको बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? यार टाइम तो डिपेंड करता है. टाइम आई मीन स्किल्स पे डिपेंड करता है. अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश हो तो आपको 7-8 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है. और अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो तो आप 2-3 महीने में भी बना सकते हो. उसके अलावा आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस ऑफ योर टेक्नोलॉजीज़. तो नोट जे एस और रिएक्ट जो है वो सिर्फ फ्रंट एंड और बैक एंड है, लेकिन वो सब डेटा बेस कहाँ से आ रहा होगा, आपके प्रोडक्ट्स कहाँ पे सेव हो रहे होंगे, ये ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस हैं कंपेयर टू कि मैं रिएक्ट और नोड यूज़ करूँ. क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जो लोग बाय करेंगे और सेल करेंगे चीज़ें, वो कहाँ पे ये काम कर रहे होंगे, और उनके लिए कितना आसान होगा ये सारे नए प्रोडक्ट्स ऐड करना या रिमूव करना. तो ये सारी चीज़ें आई थिंक ये क्वेश्चन है. तो इसके लिए हम आम तौर पे कोई ना कोई सी एम एस या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं. तो आप स्ट्रॉपी देख सकते हो एज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. कहाँ गया? हेडलेस सी एम एस है ये, तो आप ये देख सकते हो. इसके अलावा आई थिंक ये मेरे ख्याल से सबसे सस्ता और फ्री है. गिटअप पे तकरीबन 54,000 स्टार्स हैं इसके. और अनदर वन इज़ कॉन्टेंटफुल. लेकिन मैंने कॉन्टेंटफुल जो है वो जो मैंने देखा है इट्स अ बिट एक्सपेंसिव. तो ये देख लेना. आई थिंक इसमें शायद जो मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ है वो शायद ट्रांसलेशंस हैं, शायद इसके अलावा इतना ज़्यादा नहीं है. इंक्लूड्स 1 इंट्रो, स्पेस लाइसेंस, 5 यूज़र्स, 4 स्टैंडर्ड रोल, 2 लोकल्स, कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट, टास्क ऐप, कंपोज ऐप, मोर. तो ये भी देख लेना कंटेंटफुल. बट मेरा पर्सनल जो थोड़ा सा फेवरेट है दैट इज़ स्ट्रापी. और स्ट्रापी जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर इवन जो CodewithAhsan.dev है, इसके जो कोर्सेज़ हैं, तो कोर्सेज़ के अंदर जितने लेक्चर्स वगैरह हैं ऑल ऑफ देम आर बेस्ड ऑन स्ट्रापी फॉर मी. तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देखोगे कंक्लूजन की एक वीडियो है, जावास्क्रिप्ट एडवांस के ये सारे लेक्चर्स हैं, जावास्क्रिप्ट के ये सारे लेक्चर्स हैं. तो ये सारे के सारे जो हैं ये अवेलेबल होते हैं हमारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे. हेडलेस सीएमएस का थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, इसका पर्पस क्या है, किसी यूज़ केस के साथ बता दें. हेडलेस सीएमएस का मतलब होता है कि उसका कोई यूआई नहीं है आपके पास, या लोग उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे. तो एक काम ये कर लेते हैं, गूगल पे ज़रा इसकी एक्चुअल डेफिनेशन देख लेते हैं. तो हेडलेस सीएमएस बेहतर काम करते हैं. व्हाट इज़ हेडलेस सीएमएस? ठीक है. तो ज़रा कंटेंट एआई से देख लेते हैं. मेरे ख्याल से ये खुद हेडलेस सीएमएस वाले हैं. कंटेंटफुल हेडलेस सीएमएस वाले हैं. तो ये सारे के सारे वो काम करते हैं. कुकी सेटिंग्स, नेसेसरी कुकीज़ रख लें, बाकी छोड़ दें. अच्छा जी, कहाँ है हेडलेस सीएमएस? नो हेड नो लिमिट्स. तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन से डेफिनेशन कहाँ लिखी है, विद मोबाइल. एग्जैक्टली. तो दैट इज़ द सेम थिंग जो मैं बताने वाला था
कि हेडलेस CMS के अंदर और CMS के अंदर फ़र्क ये होता है, वर्डप्रेस जो है वो CMS है। वर्डप्रेस पे आप जाते हो, आपके पास फ्रंट एंड है, वहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें ऐड करते हो, रिमूव करते हो, तो उन्होंने आपको कम्प्लीटली फ्रंट एंड दिया होता है। हेडलेस CMS के अंदर जो यूज़र्स हैं वो डायरेक्टली जाकर चीज़ें ऐड या रिमूव नहीं कर रहे होते, क्योंकि उसका कोई फ्रंट एंड नहीं होता। स्ट्रापी के अंदर हमारे पास ये जो फ्रंट एंड दिया हुआ है, ये एडमिन के लिए दिया हुआ है। ये जो ओनर है इस पूरी एप्लीकेशन का, जो कि मैं हूँ इस वक्त, ये उसके लिए दिया हुआ है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर हम वेब डेवलपमेंट बेसिक्स का कोर्स देखें और ये फॉर एग्जांपल CSS एडवांस का सेक्शन देखें जिसमें ये सारे चीज़ें हैं, तो इसको मैं अपने हेडलेस CMS से मैनेज कर रहा होता हूँ कि मैं जाके किसी भी फॉर एग्जांपल चैप्टर पे चला जाऊँगा और मैं CSS एडवांस खोलूँगा। तो इस CSS एडवांस्ड की सारी पोस्ट हैं, जो 10 पोस्ट नज़र आ रही हैं, ग्रिड, ट्रांसफॉर्म, एनिमेशन, CSS मीडिया क्वेरीज, ये रे ग्रिड, CSS मीडिया क्वेरीज, ट्रांसफॉर्म्स, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मैं मैनेज कर रहा हूँ एज ए एडमिन। लेकिन इसको जो असल क्रिएट करने का तरीक़ेकार है वो क्या है, वो ये है कि मैं अपने Node.js के कोड से इस पे API हिट कर सकता हूँ और मैं वहाँ से डेटा भेज सकता हूँ प्रोग्रामेटिकली। तो हेडलेस CMS इज़ ए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें आप कंटेंट ऐड कर सकते हो, और कंटेंट क्या है, कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा कोर्स एक कंटेंट है, कोर्स के अंदर हर एक चैप्टर एक कंटेंट है, हर चैप्टर के अंदर एक पोस्ट भी एक कंटेंट है। तो हमारे पास कोर्स का कलेक्शन है जिसमें ये सारे कोर्सेज़ हैं, 4 कोर्सेज़ जो मेरे पास नज़र आ रहे हैं, और आपको यही सारे कोर्सेज़ यहाँ पे भी नज़र आएंगे, ये 4 कोर्सेज़ हैं, ठीक है। तो ये चारों के चारों कोर्सेज़ यहाँ पे हैं। फिर आप हर कोर्स के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स लेके जाते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं वेब डेवलपमेंट बेसिक्स को देखूँ, तो इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे लिंक हुए होंगे, तो 8 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर हम किसी चैप्टर में चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट के अंदर चले जाते हैं, तो हर चैप्टर के अंदर डिफरेंट पोस्ट्स हैं। तो ये सारे की सारे कलेक्शन है डिफरेंट, और हर एक दूसरे से लिंक हुआ हुआ है। तो वो जैसे में हमने लिंक किया हुआ है वो मेरा आर्किटेक्चर है कि मैंने किस तरीके से इसको आर्किटेक्ट किया हुआ है। लेकिन द आइडिया इज़ कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। और ये है क्या असल में, अगर मैं किसी भी एक पोस्ट पे चला जाऊँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से व्हाट इज़ जेसन, तो व्हाट इज़ जेसन का कोई ना कोई टाइटल होगा, उसकी कोई ना कोई वीडियो की URL होगी, उसकी कोई ना कोई थंबनेल होगी, उसका कोई ना कोई स्लग होगा। जैसे व्हाट इज़ जेसन में आपको यहाँ नज़र आ रहा है व्हाट डैश इज़ डॉट डैश जेसन। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं अपने जावास्क्रिप्ट के कोर्स के अंदर चला जाऊँ और मैं यहाँ पे जाके सर्च करूँ व्हाट इज़ जेसन फॉर एग्जांपल, ये रहा व्हाट इज़ जेसन। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी ये जो URL है व्हाट इज़ जेसन, ये वहाँ से बन रही है, यानी कि इसके लिए मैंने ये डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। सिमिलरली ये किस चैप्टर से बिलोंग करता है, इसका ऑर्डर क्या है पूरी वीडियोस के अंदर, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये जो इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है, ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है जो यहाँ पे नज़र आती है। तो मेरा ये जो कंटेंट है ये किसी डेटाबेस के अंदर नहीं पड़ा हुआ, ये CMS के अंदर पड़ा हुआ है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, जो कि मेरे डेटाबेस के तौर पे काम कर रहा है। तो अब मुझे अगर कोई भी चेंज करना होगा तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन को चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी ऐड कर दूँ। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे मेरे फ्रंट एंड में या मेरे बैक एंड में कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में चेंजेस किए हैं। ऑटोमेटिकली ये मेरे बैकएंड को डिप्लॉय कर देता है, क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग की हुई है या मैंने इसका सेटअप किया हुआ है, दोनों को लिंक किया हुआ है। तो जैसे ही मेरे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में कोई चेंज होता है, मेरा जो बैकएंड है वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है। मुझे कोड में जाके कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद से डिप्लॉयमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा, और फिर जैसे ही कोई नया बंदा जाएगा और इस पेज पे पहुंचेगा और फर्स्ट टाइम पहुंचेगा या रिफ़्रेश करेगा, तो उसको अपडेटेड डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी। तो ये CMS का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हम कंटेंट मैनेज कर सकते हैं वाया UI या API कॉल्स, और उसमें हमें अपने कोड को जाके चेंज नहीं करना पड़ता, या हमें मैन्युअली डेटाबेस के अंदर जाके एंट्रीज नहीं करनी होती या चेंजेस नहीं करने पड़ते, या उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही होती आमतौर पे। तो मैं चाहूँ तो मैं यहाँ जाके किसी भी चैप्टर को फॉर एग्जांपल एक्टिव से इनएक्टिव कर सकता हूँ, किसी भी कोर्स को मैं जाके जो है वो अनपब्लिश कर सकता हूँ, और मैं अनपब्लिश कर दूंगा तो वो हट जाएगा मेरे कोर्स से, यानी कि मेरी वेबसाइट से हट जाएगा। तो CMS का मतलब है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हेडलेस CMS का मतलब है कि एक ऐसा CMS है जिसको आप API कॉल्स के थ्रू मैनेज कर सकते हो। और दूसरा ये कि अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो यूज़र्स हैं वो CMS के साथ काम नहीं कर रहे होंगे। तो आई होप दैट मेक सेंस।
डेटाबेस डिज़ाइन नहीं चाहिए होता, ये ट्रू नहीं है। डेटाबेस डिज़ाइन फिर भी चाहिए होता है। सीएमएस के अंदर आपको मिल जाता है कि अच्छा कलेक्शन टाइप्स है। अगर मैं नया सीएमएस खड़ा करूँगा तो यहाँ कलेक्शन टाइप ज़ीरो होंगे, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ज़ीरो, नथिंग एट ऑल। आपको ये डेटाबेस डिज़ाइन करना पड़ेगा कि अच्छा मेरे पास, जैसे मुझे ये चीज़ डिज़ाइन करनी पड़ी थी कि हाँ, मुझे मेरे पेज पे कोर्सेज दिखाने हैं, हर कोर्स के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स होंगे, हर चैप्टर के अंदर डिफरेंट पोस्ट होगी। ये डिज़ाइन मुझे बनाना पड़ा पहले अपने माइंड में, और फिर मेरे सीएमएस के अंदर भी मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ा कि अच्छा इसका रिलेशन ये है। क्योंकि आज जब आप कंटेंट टाइप बिल्डर पे जाते हो तो यहाँ जाके आप एक नया कंटेंट टाइप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी नई चीज़ के साथ आ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल क्विज़ का मैं एक कलेक्शन बना सकता हूँ। तो उस कलेक्शन में क्या होगा, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो क्या क्या काम करेंगी, ये स्टिल डेटाबेस डिज़ाइन है। फॉर एग्जांपल ये सारी की सारी चीज़ें मैंने ऐड की हैं, ये मुझे सीएमएस ने ऑटोमेटिकली नहीं दी। जब सीएमएस आपको मिलता है तो खाली होता है बिल्कुल, उसमें कोई चीज़ नहीं होती। तो डेटाबेस डिज़ाइन स्टिल आपको चाहिए। जो फ़र्क है वो ये है कि आपको अगर कोई भी चीज़ चेंज करनी है तो आप डायरेक्टली इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए, क्योंकि ये पूरा यूआई आपको बना हुआ मिला है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे नोट जेएस या नोट जेएस के साथ मोंगो डीबी या माई एसक्यूएल के साथ काम करना हो, तो अगर मुझे एक नया टेबल बनाना हो तो मुझे उसके लिए एसक्यूएल क्वेरी रन करनी पड़ेगी, या मोंगो डीबी के कलेक्शन को ऐड करना पड़ेगा, उसका स्कीमा बनाना पड़ेगा। सीएमएस का फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, दो तीन जगह क्लिक करूँगा, ये ऐड करूँगा, ये सिलेक्ट करूँगा और मेरा वो काम हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली उसका स्कीमा पीछे बन जाता है, उसकी एपीआई कॉल्स पीछे से ऑटोमेटिकली बन जाती हैं, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। वरना वहाँ पे मुझे मोंगो डीबी के अंदर पहले तो उस कलेक्शन को बनाना पड़ेगा, फिर उस कलेक्शन के मुझे डेटाबेस के फंक्शंस बनाने पड़ेंगे क्वेरी करने के लिए, फिर मुझे उसके एंड पॉइंट बनाने पड़ेंगे कि उसको ऐड करने के लिए पोस्ट की कॉल होनी चाहिए, गेट करने के लिए गेट की कॉल होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। सीएमएस के अंदर आपने बस कलेक्शन नया ऐड किया, वो पीछे बिहाइंड द सीन्स सारी चीज़ें खुद ही ऐड कर देता है। तो सीएमएस में ये आसानी है कि हमें बहुत सारा काम, जो मुश्किल काम है वो पहले से हुआ हुआ है, हम यहाँ बस 5-6 क्लिक करेंगे, दो तीन चीज़ें लिखेंगे और हमारे पास एक नया कलेक्शन बन जाएगा, उसके सारे एंड पॉइंट्स बन जाएंगे, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। तो सीएमएस का ये फ़ायदा होता है। लेकिन ये जो डिज़ाइन है, यू स्टिल हैव टू डू दिस, कि भाई अगर एक नया यूज़र आ रहा है तो उसका यूज़र नेम, ईमेल, प्रोवाइडर, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अगर मैं कोई नया फॉर एग्जांपल पोस्ट कर रहा हूँ तो पोस्ट के अंदर टाइटल होगा, उसकी टाइप होगी, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्वियसली ऐड की हैं और थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऐड किए हैं, और इसको मेरे ख्याल से मैं पिछले 2 साल से तो शायद मेंटेन कर ही रहा हूँ। तो ये चेंज हुई बार बार, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बेकार की पड़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई इंपॉर्टेंट है। तो इट डिपेंड्स। फॉर एग्जांपल हैज़ असाइनमेंट एक चीज़ हो गई। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप सीएमएस के थ्रू बहुत ईजीली कर सकते हो। तो आई होप डैट मेक्स सेंस। तो कुछ जगहों पे सीएमएस का फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट के लिए मुझे ये चीज़ अजीब सी लग रही है कि मैं एसक्यूएल क्वेरी यूज़ करूँ, ये वो। सीएमएस ने मेरा काम बड़ा आसान कर लिया, क्योंकि मैं जब भी कोई नई वीडियो बनानी होती थी, मैं सीधा सीधा सीएमएस पे जाता था अपने, और उसमें एक नई वीडियो या एक नई पोस्ट ऐड कर लेता था, उसको यूट्यूब की वीडियो के साथ लिंक कर लेता था, और वो चीज़ ऑटोमेटिकली रन करी थी। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टाइम, अभी जो आखिरी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें तो मुझे ये काम भी नहीं करना पड़ता था कि मैं इसको खोलूँ और उसमें नई एक वीडियो ऐड करूँ, क्योंकि मैंने उस चीज़ को भी ऑटोमेट किया हुआ था कि हर हर रोज़ 5 बजे वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके एक स्क्रिप्ट देख लेती थी कि कोई नई वीडियो अपलोड हुई है नहीं हुई। और अगर वहाँ कोई नई अपलोड होती थी वीडियो, तो वो ऑटोमेटिकली इस सीएमएस में एपीआई एंड पॉइंट के थ्रू, जो सीएमएस के एपीआई एंड पॉइंट है, उसके थ्रू एक नई पोस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता था। वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता था तो बैकएंड ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता था, और नई पोस्ट ऑटोमेटिकली सबके पास चली जाती थी। तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता था लास्ट के अंदर। मुझे सिर्फ इतना करना है कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालनी है, मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, ऑटोमेटिकली सारे की सारी चीज़ें ये चल पड़ेंगी, और मेरे सीएमएस में चीज़ ऐड भी हो जाएगी, मेरी वेबसाइट पे पब्लिश भी हो जाएगी। और फिर इवन दो ये सब भी हो जाता है तो आखिर में डिस्कॉर्ड पे भी मैसेज चले आता था। तो वो चीज़ इतनी ऑटोमेट हुई हुई थी। आई थिंक, नॉट श्योर आपने डिस्कॉर्ड देखा है कि नहीं देखा। अच्छा, आई एम सीइंग अ प्रॉम्प्ट इन डिस्कॉर्ड, लेकिन बहरहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इन दिस केस अगर मैं अपने चैनल पे चला जाऊँ तो हियर यू विल सी के जो अनाउंसमेंट्स है यहाँ पे, तो यू सी दिस, यहाँ पे न्यू लेक्चर्स अवेलेबल ऑन कोड विद एहसन साइट, रैंडम यूज़र लिस्ट ऐप। ठीक है, अब मैं आपको ऑटोमेटेड मैसेजेस दिखाता हूँ मोर और लेस जो आते हैं।
ये देखें, ये आ रहा है 5:22 PM पे, ठीक है। अगला मैसेज 5:22 PM, ये मैंने मैनुअली किया था तो 9:10 PM। ये 6:03 PM, ये भी मैनुअली किया था। 5:31 PM ये ऑटोमेटिकली पुश हुआ। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला मैसेज जो है वो मैंने किया था, लेकिन ये जो CWA बॉट है कोड विद एहसन का, ये ऑटोमेटिकली 5:31 पे या 5:22, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट कितना टाइम लेती है, लेकिन 5 बजे के आसपास, 5 से 5:30 के दरमियान ही ये ऑटोमेटिकली पेश कर देती है। अब यहाँ देखो, ये 5:22 पे किया है, अगले दिन एग्जैक्टली 5:22 पे किया है, क्योंकि स्क्रिप्ट ने सेम टाइम लिया है। एग्जैक्टली 5:22 PM पे किया है। तो रोज़ जब मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आके खुद ही चेक कर लेता है और खुद ही चीज़ें अपलोड कर लेता है और डिस्कॉर्ड पे पब्लिश भी कर देता है। तो CMS से ये इस तरह के छोटे छोटे फ़ायदे जो है वो हो जाते हैं काफ़ी। तो आई होप डैट मेक सेंस। चलें जी, ज़रा इस पे आते हैं कि हम अपना कोड फाइनलाइज कर लें। तो ये मेरे पास मेरा कोड है, इसको ज़रा वापस से प्रीवियस सिचुएशन में लाते हैं जो कि सिमिलर होना चाहिए। और फिर हम ये करते हैं कि एक तो ये काम किया हुआ है, और फिर हमारे पास ये जो आरिया सेलेक्टेड है इसको भी हमें हटाना है, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब अगर मैं देखूँगा तो ये स्टिल काम करेगा, लेकिन मैं इसको, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा अगर हम ये काम कर सकते हैं। हम्म, अच्छा ऐसा हो गया। चलें काम ही करते हैं। क्योंकि ये चेक बॉक्स, क्योंकि ये इनपुट बॉक्स है या लेबल है, दैट्स वाई इट मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू वर्क विद। अच्छा चलें काम करते हैं, ज़रा टैब इंडेक्स हटाते हैं। टू टू टू, इसको भी ज़रा हटाते हैं। टैब इंडेक्स इसको भी ज़रा हटाते हैं, और इसको भी ज़रा हटाते हैं, ठीक है। रिफ़्रेश करते हैं। अगर मैं स्पेस ग्रे सेलेक्ट करता हूँ और मैं आगे मूव करता हूँ तो ये इसको सिलेक्ट तो कर रहा है, और ये ऑटोमेटिकली इसलिए कर रहा है क्योंकि हम रेडियो बटन्स की बात कर रहे हैं या हम लेबल्स की बात कर रहे हैं। चलें अगर हम इस पर क्लिक कर दें और फिर हम कलर चेंज कर रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है। द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज़ दो, अगर मैं कंसोल पे चला जाऊँ, लेट्स सी, लेट्स ऑल्सो इंस्पेक्ट कि हमारे पास ये एलिमेंट क्या क्या है। हमारे पास लेबल है, ठीक है, और लेबल के अंदर हमारे पास वी हैव ईच डिव, और लेबल के साथ जो जिसको ये पॉइंट कर रहा है ये, आई एम थिंकिंग क्या करना चाहिए। क्योंकि अब मसला ये है कि मैंने जो पिछली HTML लिखी है ना वो भी एक्सेसिबल है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि हम ये कहें कि यार आप लिस्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हो, और लिस्ट बॉक्स के साथ बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। या तो मैं इस पूरे कोड को बहुत ही बुरा लिखूं तो ये चीज़ समझ आएगी बेटर, लेकिन चलो हम इस पॉइंट पे भी आ सकते हैं कि हमारी HTML कितनी शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि दिस इज़ टू लॉन्ग, ऐसा है। हैविंग सेड दैट, चलें इसको ज़रा कोड को मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको एक ही साथ कंप्लीट कर सकें। CD के लिस्ट बॉक्स मॉड्यूल, इसको हमने हटा दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ और चेंज करना है? नहीं करना है। HTML के अंदर देखा है, HTML ओके है, सही है। लेट्स सी, चलें जी ये हो गया। वी कैन सेलेक्ट सम ऑफ दिस, मे बी हम एक का किसी का टैब इंडेक्स दे सकते हैं, लेकिन हमें सबका टैब इंडेक्स देना पड़ेगा फिर। चलें टैब इंडेक्स भी लगा ही देते हैं जब फ़र्क नहीं पड़ रहा तो।
यहाँ पे आया था ना, इवन दो हमारे पास टैब इंडेक्स है, अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि हमारे पास अ, जो स्टाइल्स हैं वो प्रॉपरली नहीं आ रहे और उसमें हमें कोड भी लिखना पड़ेगा। चलो लिख लेते हैं, एन जी क्लास। हम एन जी क्लास में क्या करें, या हमें ये करना पड़ेगा कि हम कहें कलर ऑप्शन, लेकिन हमारे पास सी एस एस के अंदर आर ये सिलेक्टेड ट्रू था, इसको हम कर सकते हैं एंड एक्टिव, तो उस पर हम अप्लाई स्केल कर देते हैं ये, और इसको हम कर देते हैं रिमूव। सही है। अच्छा अब हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें साइंस लगानी पड़ेगी हर एक के लिए, कलर ऑप्शन क्लास डॉट एक्टिव, और ये कब लगेगी, जब हमारे पास होगी फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म डॉट कंट्रोल्स डॉट कलर डॉट वैल्यू इक्वल्स, और यहाँ पे होनी चाहिए स्पेस ग्रे। सही है। और यहाँ पे हम यहाँ ऐड करेंगे इसको, we'll also go and add it right here, here and here, and then we can say सही है, and here we can say this should be silver, this should be pink, this should be green, and this should be blue. Now I feel the need to refactor it, but we will not. Yay! Now you can see that this is being a bit zoomed in. So yeah, this is what I wanted. So we only apply the class active to the elements which are active now. So here you can see, so we have this class that says, not on this one, but here, color option active. And if I remove this, the active class goes away and then someone else is highlighted. Cool, I like it so far. So let's quickly go ahead and we can then space gray. Okay, cool. Now that we have this selected, we should be able to also so what did we change here? We added a bunch of classes. Cool, cool, cool. Let's add that. And then this guy, add it. Let's add this guy. And we add it as well. Cool. So git commit ngcdk list box, and then we can say final files and we can push it. Cool. Let's see. So now if I go and run both of them, let's see what happens. Both. Okay. So this is 4200. That is 4201. Let's add it right here. So we got 4201. So this one is this is without the list box. So if I click tab,
If I click here, I can actually move it right here. But then we have a lot of code as well. And I cannot really select multiple of them as well. But then if I go here, I can have space gray. So this is now a list box. And I can move forward. I love it. And does it also work here as well? So if I go here, so up arrow, right. So switching just changes the color or selects the color. But in other case, I'm not really selecting the color. I want to just look at the colors. Okay, I think I like this one. So we'll keep it as it is in this case. And let me also see. Uh-huh. Awesome. I think then the key would be just to write the recipe. So let's write the recipe. But what do I have apart from this one? Let's see. So after this recipe, I do have, after list box, I have a creating a complex header with, oh, then it's just the last recipe and then I should be done. What is the time? 12:30. Okay. Okay. It's not too bad. So can we go ahead and start writing the recipe then? I think yes, we should be able to do so. Let's move this here. Let's move this here. That should be okay. Let's start with this. And also let's move. I did remove this one. Pointed little popovers. But there was a coercion one. Okay, but I think I'll be adding those later on. So coerce multi-step with the CDK API. We have the drag and drop, and then we also have the, this is a new recipe, input coercion utilities. That's a new one. And that should be replacing this guy. So accessible listbox interaction using CDK listbox directives, super cool. Okay, and then we should also copy this part here. We'll fix it in a bit. So leaderboard right here. All right, let's also have a look right here. All right, I think I'm gonna go and write the recipe by myself. But if you have any questions, feel free to ask right now, and then I'll leave. Mm-hmm.
Okay, awesome. I see no questions. So thank you so much everyone for joining and for asking all the questions. And I'll keep the video as it is, and I'll see you later, inshallah. So thank you, and have a good rest of the weekend. See you later.